students. Today we will have our another lecture of design of machine element, and today's topic which we will discuss today, that is design of power screw. So starting from the basics thing, that what is a power screw and how it is being used. So let's come back to the definition, the starting point, that is the definition part. A device which is converting the rotary motion into linear motion to transmit the power is called power screw. So simply, a device which generally converts the rotary motion into linear motion. Rotary means what? That means the circular portion. That means अगर कोई बॉडी अगर मूव करता है कहीं पे और वो एक एंगल बना के मूव करता है, और वही एंगल बना हुआ मोशन को अगर हम लोग किसी लीनियर मोशन में, दैट मीन्स जब अगर कोई बात स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, तो अगर एक एंगुलर मोशन को एक स्ट्रेट पाथ मोशन में ट्रांसमिट करता है, अगर ऐसा कोई डिवाइस हो, तो दैट टाइप ऑफ डिवाइस इज मोनली नोन एज power screw. So a simple definition we can say, a device which is converting rotary motion into linear motion to transmit the power is called power screw. And इस motion से क्या करता है? Actual what is the work of power screw? Actually it transmit power, and it transmit power by how? By converting the rotary motion into linear motion. Now let's take an example. So on considering examples of power screw, I have mentioned here three lines, that is the lead screw in lathe machine, screw jack, and power screw in machine wise testing machine precision. These are the sort of examples where power screw is being used. Now coming back to the advantage portions, what are the advantages of power screw? So the first advantage is large load carrying capacity. So it has a large load carrying capacity, obviously. It has compact construction, simple in design and manufacturing, large mechanical advantage, precisely control motions, low cost and more reliable, smooth and noiseless working. These are the few advantages of power screw. And what are the disadvantages? So poor efficiency, less than 40%. That means the efficiency of the power screws are not up to mark. What are the next disadvantages? So it is rapid wear, high friction. So note down these points. These are the few advantages and disadvantages of power screw. Now going to the next one, that what are the terminologies being used in power screw. So the terminologies of power screw, I have drawn a simple figure of power screw here, that is mainly denoting you the outer sectional view of a power screw. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको बाहर से कैसा दिखता है वो पावर स्क्रू दिख सकता है. तो यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स है जो एक पावर स्क्रू को बनाने के लिए डायमेंशनल वाइज जो उसको डिफाइन कर सकता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्यू डायमीट्रिकल हम दिए, जैसे डी सी, डी नॉट, लेड, पिच. सो वन बाय वन ईच टर्म्स को डिफाइन किया गया. तो सबसे पहले नॉमिनल डायमीटर विच इज बीइंग डिनोटेड बाय डी नॉट. सो दिस वन, the largest diameter of screw, the largest diameter of screw is mainly known as nominal diameter, and it is denoted by D naught. The second one is core diameter, and it is denoted by DC. So what is DC? DC is the smallest diameter. So this one, that means this one is the DC. So this will be the core diameter. So the core diameter will be the smallest diameter of screw, and D naught will be the that is nominal diameter will be the largest diameter of screw, and in between that there is a portion that is D. So what is this D? So this D is the average of nominal and core diameter. This will be the average, that will be the D naught plus DC by 2. I hope you understand these 3 points. Now coming to the fourth one, that is pitch. So what is pitch? A successive distance between two adjacent threads is called pitch. You can see from here that this distance from up to low, this distance is mainly known as pitch. So between, you can see that this one is one thread and this one is the second thread. So distance between these two adjacent threads is known as mainly known as pitch. So this distance is mainly will define this distance as pitch. So through pitch we can easily define two formulas, that is the core diameter will be nominal diameter minus pitch, or nominal diameter will be core diameter plus pitch. So we can get two formulas from pitch. Now the next point is lead. So the lead is denoted by small l. So this one is the L, lead. The distance through which a screw advances axially in one revolution of nut is called as lead.
So lead equals to number of starts into pitch. So what is mainly a lead is? So अगर हम इसको सिंपलर भाषा में बोले तो क्या पावर स्क्रू, लेट अस सपोज कि आप कोई पावर स्क्रू को उसको टाइटन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग टॉर्क टू दैट. सो जब आप एक बार उसमें टॉर्क देते हैं तो वो जितना डिस्टेंस वो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड मूव करता है, सो एक्चुअली दैट डिस्टेंस इज नोन एज लेड एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज हेलिक्स एंगल. सो व्हाट इज हेलिक्स एंगल? It is denoted by alpha, the angle made by helix of thread with a plane of perpendicular to the axis of screw. That means this thread is making how much angle with the vertical axis. This angle will be known as helix angle, and then alpha equals to lead by pi d. This will be the L by pi into d. Pi d, that is the circumference, and L is the inward portion or the outward portion. Power screw is going inward or outward by putting a single time of torque. So these are the points. We will discuss few more points on terminologies. These are the next points. That is the seventh one is right hand thread. So what will be the right hand? When the axis of screw is vertical and if the thread slopes upward from left to right is known as right hand thread. That means दिस वन इज द फिगर ऑफ राइट हैंड. आप देख सकते हैं इस फिगर में कैसा है कि जब व्हेन द एक्सिस ऑफ स्क्रू इज वर्टिकल, जब एक्सिस ऑफ स्क्रू जो होगा वो क्या होगा आपका वर्टिकल होगा, एंड इफ द थ्रेड स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट. आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो एंगल है ये क्या है, लेफ्ट से राइट अपवर्ड की ओर जा रहा है, सारे थ्रेड्स को लेफ्ट से राइट अपवर्ड की जा रहा है. तो अगर कोई पावर स्क्रू में लेफ्ट से राइट अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका स्क्रू मूव कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज नोन एज राइट हैंड थ्रेड. सिमिलरली लेफ्ट हैंड थ्रेड कैसा हो जाए कि अगर वो राइट टू लेफ्ट में अगर वो अपवर्ड जा रहा है या फिर लेफ्ट टू राइट में वो डाउनवर्ड आ रहा है, सिंपली दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकता है कि या तो बोले हम लोग कि लेफ्ट टू राइट में वो डाउनवर्ड स्लोप्स में आ रहा है या फिर वो राइट टू लेफ्ट में क्या हो रहा है आपका अपवर्ड जा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ स्लोप्स विल बी नोन एज लेफ्ट हैंड थ्रेड. Now the ninth point is multiple thread screw. What will be the multiple? When the desired axial movement is maximum at the same dimensional screw, then the number of threads of identical pitch will be manufactured side by side on the rod. Multi-start threads are used when large lead with fine threads or high efficiency is required. Multiple start threads are double, triple, quadruple start screws. मतलब जिसमें multiple actions हो सकता है कि जिसमें properties left and right hand combined हो सकता है या फिर more than that. That type of threads are mainly known as multiple thread screw. Now the few thread profiles हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप का थ्रेड प्रोफाइल आपका पावर स्क्रू में होता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट जो बना हुआ है, हर एक पॉइंट के लिए एक फिगर साइड में बना हुआ, तो आप उससे उसको समझने के लिए आसानी होगा. सबसे पहला जो होगा आपका क्या है, स्क्वायर थ्रेड. तो स्क्वायर थ्रेड में क्या होता है, फ्लैंक्स आर 90 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ स्क्रू, फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ साइड, ट्रांसमिट पावर विदाउट एनी साइड थ्रस्ट, यूज इन स्क्रू चेक एंड क्लैंपिंग डिवाइस. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है आपका, फ्लैंक्स आर 90 डिग्री. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका यहाँ फ्लैंक्स बना हुआ है सारा क्या है, वर्टिकल से. दैट मीन्स सारा फ्लैंक्स क्या बना रहा है आपका, यह परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा फ्लैंक्स, तो दिस टाइप ऑफ फ्लैंक्स आर जनरली नोन एज स्क्रू थ्रेड. सिंपली अगर हम लोग बोले तो स्क्रू थ्रेड कैसा होता है आपका, जनरली इस टाइप का 90 डिग्री का स्क्वायर शेप का बनाता है. ट्रांसमिट पावर्स विदाउट एनी साइड थ्रस्ट. कोई भी साइड थ्रस्ट नहीं होने के बावजूद भी ये आपका क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है. और इसका मेनली इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका इस्तेमाल स्क्रू जैक में करते हैं या फिर क्लैंकिंग डिवाइसेस में करते हैं. द नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजोइडल थ्रेड. सो द ट्रेपेजोइडल थ्रेड विल बी फ्लैंक्स आर 30 डिग्री विथ ईच अदर. दैट मीन्स जो फ्लैंक्स होगा आपका वो कितना का एंगल बनाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख सकता है आपको 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ साइड, फोर्स दोनों ही साइड अप्लाई कर सकता है. यूज्ड इन मशीन टू लेड स्क्रू एंड पावर ट्रांसमिशन डिवाइस. इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, तो लेड स्क्रू में करते हैं हम लोग या फिर हम लोग इसको क्या पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस में करते हैं. मैन्युफैक्चर्ड ऑन थ्रेड मिलिंग मशीन विथ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल. इसका जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, थ्रेड मिलिंग मशीन में. और किस टाइप का टूल का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं.
The next one is acme thread. So what is acme thread? Flanks are 29 डिग्री विच अदर. जो फ्लैंक्स होगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा दूसरे के साथ? 29 डिग्री का. फोर्स अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पर भी हम लोग दोनों साइड में फोर्स अप्लाई होता है. यूज्ड इन मशीन टूल, लेड स्क्रू एंड पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस. कहाँ का इस्तेमाल होता है इसका? तो टोटल टूल लेड स्क्रू में होता है या फिर पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस में होता है. ठीक है. देन आफ्टर एफिशिएंसी लेस देन मैन्युफैक्चर बाय डाइज. इसका मैन्युफैक्चर जो हम लोग होता है कहाँ से था? मैन्युफैक्चर बाय डाइज, हेंस इजी टू मैन्युफैक्चर. एफिशिएंसी लेस देन स्क्वायर थ्रेड. इसका जो एफिशिएंसी होता है स्क्वायर थ्रेड से कुछ कम होता है. माइट बी दैट इज इफ द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड इज 45%, देन द एक्मे थ्रेड एफिशिएंसी विल बी इन बिटवीन 30 to 35%. The next one is buttress thread. What is buttress thread? Flanks are inclined at 45 डिग्री. यहाँ पे जो फ्लैंक्स होगा उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा कितना होगा? 45 डिग्री. इट कैन टेक अ थ्रस्ट इन वन डायरेक्शन ओनली. पर ऐसा जैसे कि आपने प्रीवियस केस में पढ़ा उसमें क्या दोनों साइड में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें जो थ्रस्ट होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. यूज्ड इन वाइसेस एंड क्लैंपिंग डिवाइसेस. का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? वाइस में करते हैं या फिर क्लैंकिंग डिवाइस में करते हैं. स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर टाइप ऑफ थ्रेड. तो कोई भी मतलब दूसरे थ्रेड के तुलना में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इसका एफिशिएंसी कंपेरेटिवली इक्वल होता है बट मोर एफिशिएंट, मोर स्ट्रॉन्ग. ड्यूरेबिलिटी इसका ज़्यादा होता है. दैट्स वाई इट इज़ मेनली बिंग यूज्ड इन वाइसेस और क्लैंपिंग डिवाइसेस. बिकॉज आप लोग वाइस में जैसे कि कोई भी वर्कपीस या जॉब को जब आप लोग वहाँ पे होल्ड करते हैं तो दैट शुड होल्ड प्रॉपरली एंड टाइट, ताकि जो जॉब आप करना चाह रहे, जो वर्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो कंप्लीटली हो सके. सो बटरस थ्रेड्स आर मेनली यूज्ड इन वाइसेस और क्लैंपिंग डिवाइसेस. Now there are few points of power screw that are the reasons for using square threads in power transmission. So what are the reasons for using square thread in power transmission? So the first point is greater efficiency due to 0% profile angle. So आपका यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग क्यों स्क्वायर थ्रेड को इस्तेमाल करेंगे. पावर स्क्रू का एक जो टाइप है उसमें स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल कैसे? तो देयर आर फ्यू एडवांटेज पॉइंट विच आर बीइंग मेंशन्ड. द फर्स्ट वन इज ग्रेटर एफिशिएंसी ड्यू टू 0 डिग्री. आपने को मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसमें जो होता है आपका वो सारे जो फ्लैंक्स होते हैं वो क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो 90 डिग्री का सिंस एंगल बनाते हैं तो दैट्स वाई जो आपका एफिशिएंसी जो होता है प्रोफाइल एंगल वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है. तो इसके वजह से मोर एफिशिएंट होता है कंपेरेटिवली अदर थ्रेड्स. प्रोड्यूसेस मिनिमम रेडियल और बस्टलिंग प्रेशर ऑन द नट. ये क्या करता है? रेडियल जो होता है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है इसमें, और इसी के कारण से बस्टिंग प्रेशर जो होता है नोट पे ये भी कम होता है, जिसके वजह से उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है. ट्रांसमिट पावर विदाउट एनी साइड थ्रस्ट ऑन बोथ साइड. इसमें कोई भी दोनों साइड में भी थ्रस्ट नहीं भी रहने के बावजूद भी ये पावर को ट्रांसमिट करता है. मोर पावर ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन. ये ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करता है क्योंकि इसमें लेस फ्रिक्शन आपका होता है. स्मूथ वर्किंग है, नॉइजलेस. ये स्मूथ वर्किंग करता है और इसमें साउंड काफ़ी कम होता है. द नेक्स्ट वन इज भी थ्रेड्स. व्हाट आर द भी थ्रेड फॉर फास्टर. जनरली हम लोग जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं. वेरेज जो भी थ्रेड्स होता है उसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? फास्ट टर्नर के लिए करते हैं. सो क्यों इसका फास्ट टर्नर के लिए करते हैं? इसका भी है ग्रेटर एफिशिएंसी टू 0 डिग्री प्रोफाइल एंगल. इसमें भी जो प्रोफाइल एंगल होता है क्या होता है? 0 डिग्री होता है. अगेन प्रोड्यूसेस मिनिमम एंड रेडियल और बस्टिंग प्रेशर. सिमिलरली जैसा आप देख रहे हो कि पावर स्क्रू का आपका स्क्वायर थ्रेड में लिखा हुआ, सिमिलर पॉइंट्स आपका भी थ्रेड्स में भी लिखा हुआ. मोर पावर ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन, बट बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट देयर आर डिफरेंसेस इन देयर फ्लैंक एंगल्स. जो फ्लैंक एंगल होता है उसमें दोनों में डिफरेंसेस होता है. दैट्स वाई द आपका स्क्वायर थ्रेड होता है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? पावर ट्रांसमिशन में. वेरेज भी थ्रेड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? फास्ट टर्नर में. यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डिफरेंसेस बिटवीन भी थ्रेड एंड स्क्वायर, जो आपको मैं बता रहा था कि इसका इस्तेमाल जबकि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है तो फिर हम लोग दोनों को ही पावर ट्रांसमिशन या फास्ट टर्नर में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? सो दीज आर द रीजंस व्हाई इट इज ओनली बीइंग यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन, इट इज ओनली बीइंग यूज्ड इन फास्ट टर्नर. सो दीज आर द फ्यू डिफरेंशियल पॉइंट्स बिटवीन भी थ्रेड एंड स्क्वायर थ्रेड्स. सो देख सकते हैं आप कि इसमें जो आपका प्रोफाइल एंगल होता है कितना? 60 डिग्री का होता है, बट इसमें क्या होता है? 0 डिग्री का होता है. स्ट्रेंथ क्या होता है? हाई ड्यू टू थिकनेस ऑफ थ्रेड एट बेस एट पी, लेस ड्यू टू थिकनेस ऑफ थ्रेड एट यूनिफॉर्म इज p/2. लोड कैरिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है, इसमें स्क्वायर थ्रेड में कम होता है. एफिशिएंसी लेस होता है ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, जबकि स्क्वायर थ्रेड में ज़्यादा होता है ड्यू टू लेस फ्रिक्शन. सब्जेक्टेड टू रेडियल प्रेशर, यहाँ पे क्या होता है? नो रेडियल प्रेशर.
ईजी होता है मैन्युफैक्चरिंग, इसका क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है, ये चीपर होता है, जबकि ये आपका स्क्वायर थ्रेड क्या होता है कॉस्टली होता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। सो ये आपका फ्यू पॉइंट्स था जिसको हम लोग पावर स्क्रू का टर्मिनोलॉजी के बारे में जान सके कि क्या पावर स्क्रू होता क्या है, पावर स्क्रू का आपका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस क्या है, पावर स्क्रू में जो एक्चुअलिंग होता है आपको थ्रेड्स होता है, वो थ्रेड्स किस किस टाइप का थ्रेड्स होता है, उस थ्रेड को कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन पावर स्क्रूज, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स ऑफ पावर स्क्रू विच आई हैव डिस्कस्ड टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टॉर्क required to lift the power screw and lower the power screw. So thank you for attention for today's class. We'll see the next topic in our next class. Thank you.